جو بھی اسمبلی ہوتی ہے جہاں سے کرونا پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ان لافل اسمبلی ہوتی ہے، تو اس سے پھر آپ دیکھ لیں گے کہ ان لافل اسمبلی کو کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے کہ عدم اعتماد کی۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، اگر کسی کو پرابلم ہے تو اسمبلی کے اندر آئے اور وہاں پہ تحریک اعتماد جمع کرائے اور پھر اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی کو مسئلہ ہے تو عدم اعتماد جمع کرائے، اسمبلی میں مقابلہ کریں گے۔ حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں، تحریک انصاف سے بڑے جلسے نہ کسی نے کیے نہ ہی کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا چیلنج، کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی وارننگ۔ لاہور جلسے کے بعد مذاکرات، لانگ مارچ یا استعفے؟ پی ڈی ایم قیادت 8 دسمبر کو اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ تمام جماعتوں نے پارٹی رہنماؤں سے تجاویز مانگ لیں۔ پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کی خواہش مند، نون لیگ مخالف۔ نواز شریف نے آن بیہاف آف پی ایم ایل این یہ کمٹمنٹ دی تھی اپوزیشن کو، پی ڈی ایم فیصلہ کرے تو پی ایم ایل این کے استعفے حاضر ہیں۔ یہ مینار پاکستان بھی بھرے گا، اور عمران نیازی صاحب یہ سن لیں، 2.5 سال سے یہ کہتے رہے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمران نیازی صاحب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ مینار پاکستان کا جلسہ، حکومت کے خلاف عوامی ریفرینڈم، پی ڈی ایم اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرے، استعفے حاضر ہیں۔ اب اپوزیشن عمران نیازی کو نہیں چھوڑے گی، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی للکار، جو اینٹ مارے گا اسے پتھر سے جواب دیں گے، شاہد حقان عباسی کی وارننگ۔ سیاست میں اپوزیشن کی بات سنی جاتی ہے، جب حکمران بوکھلا جائیں، ڈر جائیں، گھبرا جائیں تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو جو اینٹ مارے گا انشاءاللہ پتھر سے جواب دیں گے۔ پی ڈی ایم کا وہ ٹولہ ہے جو آج کل ذہنی اور اخلاقی معذوری کا شکار ہے۔ عوام کو جنہوں نے انہیں مسترد کر دیا تھا، اپنی خواہشات کا ایندھن بنا کے اس کورونا کی بھٹی میں دھکیل کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ مینار پاکستان پہ ان سیاسی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی بات ذہنی معذوری کی بڑی نشانی، مینار پاکستان پر سیاسی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ اپوزیشن عوام کو اپنی خواہشات کا ایندھن بنانا چاہتی ہے۔ پی ڈی ایم کا ٹولہ انسانیت کے لیے خطرہ بن چکا، فردوس عاشق آوان۔ فردوس عاشق آوان کی زور آزمائی، مکہ مار کر ٹائلیں توڑ دی، پی ڈی ایم کو ذہن میں رکھ کر مکہ مارا، سیاسی مخالفین کرچی کرچی ہو گئے، معاون خصوصی کی گفتگو۔ کورونا کی خطرناک صورتحال، سیاسی جلسوں پر پابندی اور دیگر حفاظتی اقدامات کے لیے درخواست دائر۔ وبا شدت سے پھیل رہی ہے، اجتماعات پر پابندی لگائی جائے، درخواست گزار کی لاہور ہائی کورٹ سے استدعا۔ کورونا کی دوسری لہر مزید خوفناک، 24 گھنٹے کے دوران 44 جانیں چلی گئیں، 3119 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں 4,13,191 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 52,359 تک پہنچ گئی۔ سلیم مانڈوی والا، سابق ایم ڈی پی آئی اے اعجاز ہارون نے عبدالغنی مجید سے مشکوک ڈیل کی، دونوں نے جعلی اکاؤنٹ سے 14 کروڑ روپے وصول کیے۔ تحقیقات شروع ہونے پر جرم کی رقم قرض ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ نیب نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف کیس کی تفصیلات جاری کر دیں، الزامات تحقیقات میں رکاوٹ قرار۔ ایل این جی مہنگی منگوائی آپ نے اور آپ کے ٹرمینلز کو آپ نے استعمال نہیں کیا، تو 25 ارب روپے آپ نے نان یوٹیلائزیشن جو ٹرمینلز کی ہے اس کی مد میں ادا کیے ہیں۔ عمر ایوب اور ندیم بابر، یہ 2 افراد ذمہ دار ہیں پاکستان کی خزانے کو، پاکستان کے عوام کو ان کی جیبوں سے 122 ارب روپے کا نقصان کرنے کو اور نکالنے کو۔ ایل این جی پر تاخیر سے فیصلے کے 22 اربوں کا نقصان، 122 ارب روپے کے نقصان کے ذمہ دار عمر ایوب اور ندیم بابر ہیں۔
बिजली के लिए फर्नेस ऑयल मंगवाकर 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सईद गनी के इल्जामात, लगता है नैब सिर्फ ऑपोजिशन के लिए बनी है, सूबाई वजीर की तनकीद। पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल पर 94% शिकायत हल। ये है खिदमत की सियासत जिस पर इमरान खान यकीन रखते हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बनाने जबकि करप्ट अलायंस माल बनाने की नीयत से आया, शहबाज गिल। मुस्तफा कमाल के खिलाफ प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस, प्रोसिक्यूशन ने कोरोना पॉजिटिव मरीज बतौर गवाह पेश कर दिया। इंकशाफ होने पर खलबली, मुतासरा शख्स को अदालत से बाहर निकाल दिया गया। बरतानिया से आने वालों के लिए अच्छी खबर। बरतानवी एयरलाइन का 13 दिसंबर से पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़। सिविल एविएशन ने वर्जिन अटलांटिक को हफ्तावार 8 परवाज़ों की लैंडिंग की इजाज़त दे दी। यूरोपीय कमीशन की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी का मामला, वेबसाइट पर महदूद और ममनुआ एयरलाइंस की फहरिस्त से PIA का नाम खारिज। एयरलाइंस तर्जुमान को लाइसेंस का मामला भी जल्द हल होने की उम्मीद। निशान हैदर मेजर अकरम शहीद का 49वां यौम शहादत। 1971 की जंग में जुर्रत व बहादुरी की दास्तान रकम की, दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। जहलुम में यादगार पर पुरवकार तकरीब, आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए गए। न्यूजीलैंड में क्रिकेट से पहले कोरोना मुकाबले, कौमी खिलाड़ियों की आइसोलेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस के लिए सख्त जान मशकें। 5वीं और आखिरी कोविड टेस्टिंग कल होगी, क्लियरेंस पर प्रैक्टिस की इजाजत का कवी इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं जवेरिया जैद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे फैसलाबाद से, जहां पे कमसिन घरेलू मुलाजमा पर खातून का बेईमाना तशद्दुद, खातून ने बच्ची को थप्पड़ मारे और बालों से पकड़कर जमीन पर फेंका। शौहर को भी मासूम बच्ची पर तरस न आया, थप्पड़ों की बारिश कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घरेलू मुलजिमा पर तशद्दुद की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज को मौसूल हो चुकी है। मुतासिरा बच्ची और उसके लवाहिकीन का सुराग नहीं लगाया जा सका है। ये इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं ये फैसलाबाद के हैं, जहां पर कमसिन घरेलू मुलाजिमा पर खातून की जानिब से बेईमाना तशद्दुद किया गया और बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खातून ने नहीं बल्कि इसके शौहर ने भी मासूम बच्ची पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं, तफसील जान लेते हैं। शहरोज, कहिएगा इस बच्ची से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ जो इसे ये सजा दी गई? देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक जो है वो खबर है जो इस वक्त हम अपने नाजरीन को जो है वो दे रहे हैं और जिसकी CCTV फुटेज भी हमें मौसूल हो गई है। ये किनाल रोड पर एक मकामी सोसाइटी है जिसके अंदर ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये घरेलू मुलाजमा है, ये घर में काम करती है और ये जो तशद्दुद कर रही है खातून, इसका बेटा और बाद में जो है वो एक मर्द जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सामने वाले घर में रहते हैं और ये बच्ची सामने वाले घर में घरेलू मुलाजमा है। इन्होंने मोर रखे हुए हैं। ये जो तशद्दुद कर रहे हैं लोग, इनके बच्चों ने मोरों को जो है वो मारा था, जिस पर ये बच्ची सामने निकलकर इनको मना करने गई थी कि अपने बच्चों को जो है वो रोक लें, वो घर में जो मोर रखे हैं उनको जो है मार रहे हैं। तो उस पर ये बच्चे जो है उन्होंने घर जाकर शिकायत दिखाई, जिस पर ये मुनीर नामी शख्स है और इसकी अहलिया और ये जो बच्चा है, इन्होंने जो है इस बच्ची को बालों से पकड़कर जमीन पर पटका और कई बार इसको जो है वो तशद्दुद का निशाना जो है बनाते रहे हैं, जिसकी CCTV फुटेज भी हमें मौसूल हो गई और दीगर फुटेजेस भी हमने हासिल कर ली हैं। और ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो पुलिस है थाना मदीना टाउन, इसको लगता है थाना मदीना टाउन की पुलिस वहां पर गई थी और सिर्फ जो है वो सूरत हाल देकर वापस आ गई। लेकिन अब जो
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उन्होंने जो है वो इस वाक़े का जो है नोटिस लिया है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी मुद्दत में थाना मदीना टाउन में इस मुनीर नामी शख्स मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शेरोज आप साथ ही रहिएगा। सारा अहमद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। सारा साहिबा आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप साथ ही रहिएगा। शेरोज से मजीद तफसील लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं, आपसे भी बात करते हैं। शेरोज, यानी आपका कहना यह है कि ये बच्ची इस घर की मुलाजिमा नहीं है जिसके लोग इस पर तशद्दुद करें, किसी और सामने वाले घर की मुलाजिमा है, इस पर तशद्दुद होता रहा तो जिनकी मुलाजिमा है उन्होंने भी आकर नहीं रोका, वो भी तमाशा देखते रहे? जी बिल्कुल, अभी तक तो यही सूरत हाल जो है वो सामने आई है, क्योंकि अगर तो जिनकी घर की मुलाजमा है उन्होंने भी अगर एक्शन लेना होता तो ये मुकदमा वो दर्ज करवाते, ना कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को जो है वो दरमियान में आना पड़ता। पुलिस वहां पर पहुंची है, उनका आपस में जो है वो पैचअप जो है वो करवाने की कोशिश की है। इस बच्चे की उम्र क्या बताई जा रही है? इस बच्चे की उम्र जो है वो 11 साल है और ये इनके घर में तकरीबन अरसा 1-1.5 साल से जो है वो काम कर रही है सामने वाले घर में, जहां पर ये मोर रखे हुए थे। तो अब सूरत हाल यह है कि पुलिस अगर वहां पर पहुंच के उस वक्त पुलिस कार्रवाई करती तो इनको गिरफ्तार भी कर लेती और मुकदमा भी दर्ज करती, लेकिन पुलिस की ये अफसोसनाक जो है वो कार्रवाई थी कि पुलिस ने वहां पर पहुंचकर मामले को रफा दफा करने की जो है वो कोशिश की, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो वहां पर उसकी जानिब से दरखास्त दी गई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सारा साहिबा की तरफ चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सारा साहिबा, यकीनी तौर पर इस तरह के केसेस जो हैं उसको आप देखते हैं और उन्हें संभालने की भी कोशिश करते हैं, जो लीगल उस पे एक्शन है उसकी आपकी तरफ से दरखास्त दी गई। ये हुआ क्या है अब तक इस केस को लेकर, आपकी क्या फाइंडिंग है? बच्ची की उम्र क्या है, उसकी हालत कैसी है, क्या पता चला आपको फैसलाबाद से? जी, एक तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंडेम दिस वेरी स्ट्रांगली, और इसको बिल्कुल एक हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ऑल्दो ये डायरेक्टली हमारे कानून के अंदर नहीं आता है, लेकिन क्योंकि हमारा जो ब्यूरो का नाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन, एंड आई थिंक ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर इंटरवीन करके हमने जो है अब इसको अपने मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज करवाया है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.